الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور لب کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کچھ ضرورت نہیں کہ روزے کا نام رکھ کر وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کے حقیقی مقصد اور ایک بڑے گناہ کبیرہ کا ذکر فرمایا جسے جھوٹ کہا جاتا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ کوئی بندہ روزے میں کھانا پینا چھوڑ دے لیکن وہ ساتھ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، کیونکہ جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے۔ اور قرآن حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو بچاتی ہے، نجات دیتی ہے، کیونکہ سچائی ایک نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور والکذب یہلک، اور جھوٹ ایک برائی ہے جو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، جس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ بظاہر ایک جھوٹ بول کر وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، لیکن اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی اور جھوٹ بھی بولنے پڑتے ہیں، جس سے گناہ در گناہ کرتے کرتے بہت بڑا گناہگار انسان بن جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جھوٹ کی مذمت بیان کر تو یہ بیان فرمایا کہ منافقین کی 3 نشانیاں، اور ایک روایت میں 4 نشانیاں بیان فرمائی۔ ان میں سے پہلی نشانی یہ بیان فرمائی، اذا حدث کذبا، کہ جب وہ بات کرے تو بات میں جھوٹ بولے، یہ ایک عملی منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ دوسری، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ خلافی کرے۔ تیسری، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی بیان ہوا، اذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرے تو گالیاں نکالے۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی بیان فرمایا کہ جھوٹ بولنا یہ عملی منافق کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، بخل کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हाँ, बुज़दिल भी हो सकता है। फरमाया क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ से इज्तिनाब करता है। और हर एक गुनाह जो ऐसा है जिस गुनाह की सजा दुनिया में अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाई कि ये गुनाह करेगा तो ये सजा पाएगा, और किसी गुनाह की वजह से उस पर लानत की इजाजत नहीं है, क्योंकि लानत का माना ये होता है कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओ और अल्लाह की रहमत तुम्हारे करीब न आए। स्वाए सिर्फ 2 गुनाहों के जिनके ऊपर अल्लाह ने कुरान मजीद में और अल्लाह के पाक पैगंबर ने हदीस में उन पर लानत भेजी। एक गुनाह ऐसा गुनाह है जिसे झूठ कहा जाता है। जो बंदा भी झूठ बोले अल्लाह की उस पर लानत होती है। अल्लाह की लानत का मतलब वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने वफ़द नजरान का जिक्र किया। जब वो मुबाहला के लिए नबी अलैहिस्सलाम की तरफ आने लगा, नबी अलैहिस्सलाम ने कि हम एक मैदान में जमा होकर वहां पर फिर गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने ये दुआ करते हैं, अल्लाह झूठे के ऊपर तू लानत फरमा, जो झूठा है उसके ऊपर लानत फरमा। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर कोई बंदा झूठ बोलेगा वो अल्लाह की लानत का मुस्तहिक होगा, उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। नबी अलैहिस्सलाम और इसी तरीके से उस जमाने में मुशरिक लोग भी झूठ बोलने से बड़ा इज्तिनाब किया करते थे, वो झूठ नहीं बोला करते थे। हरकल बादशाह एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा, रूम का बादशाह था, और उस हरकल बादशाह के दरबार में अबू सुफियान जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे पेश किया गया। और हरकल बादशाह को ये पता चला कि अरब की सरजमीन पर आखिरी नबी का ज़हूर हुआ है, और आखिरी नबी के ज़हूर की वजह से हरकल बादशाह ने कहा अरब का कोई आदमी हो तो मेरे दरबार में लाया जाए। तो अबू सुफियान को जब लाया गया तो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अभी मुसलमान नहीं हुआ था, तो हिरकल बादशाह ने मुझसे सवाल किए। एक सवाल ये किया, क्या तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान कोई जंग हुई है कि नहीं हुई? तो मैंने कहा हाँ जंग हुई है। तो फरमाया क्या मामला पेश आया? तो अबू सुफियान फरमाते हैं मैंने मुज़ब्ज़ब से जवाब दिया, कभी वो गालिब आ जाते हैं, कभी हम गालिब आ जाते हैं। फिर दूसरा सवाल किया कि उस नबी अलैहिस्सलाम के पैरवी करने वाले कौन लोग हैं? तो अबू सुफियान फरमाते दिल में ख्याल आया कि कुछ झूठ भी बोल दिया जाए, लेकिन फिर नदामत की वजह से मैंने झूठ को छोड़कर ये कह दिया कि नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले गरीब किस्म के लोग हैं। तो इस तरीके से अबू सुफियान ने भी ज़माने जाहिलियत में झूठ से इज्तिनाब इसलिए किया कि झूठ को मुशरिकीन मक्का भी बड़ा मायूब समझते थे। और नबी अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी को लाया गया। नबी अलैहिस्सलाम के पास जब आदमी को लाया गया तो नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगा मेरे अंदर 3 गुनाह मौजूद हैं, मैं 3 गुनाह का मुर्तकिब हूं, लेकिन आपकी खातर उन 3 गुनाहों में से एक गुनाह में छोड़ दूंगा। एक में शराब पीता हूं जो बहुत बड़ा गुनाह है, एक में जिना करता हूं, चोरी करता हूं, तीसरा गुनाह मेरे अंदर ये पाया जाता है मैं झूठ बोलता हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप झूठ को छोड़ दें, मेरी खातर झूठ को छोड़ दें। तो जब वो फरमाते हैं कि जब मैंने झूठ को छोड़ा तो रात को जब मैं चोरी करने लगा फिर ख्याल आया कि नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में जाऊंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैंने चोरी को भी छोड़ दिया। शराब पीने की बारी आई तो शराब का ख्याल आया कि नबी अलैहिस्सलाम पूछेंगे तो मैंने शराब को भी छोड़ दिया। और इसी तरीके से जना की बारी आई तो मैंने जना को भी छोड़ दिया। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम की वजह से मैंने झूठ को छोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझसे 3 गुना और भी छूट गए। तो इस तमाम अहादीस में ये बात भी साबित होती है कि एक झूठ छोड़ने की वजह से कई और गुनाहों से भी इंसान का छुटकारा हो जाता है। कि एक झूठ छोड़ा उसकी वजह से नदामत उठाने की वजह से आदमी बाकी गुनाहों से भी बचता जाता है, क्योंकि ज़बान नबी अलैहिस्सलाम की फरमान के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा मुझे 2 चीजों की जमानत है मैं उसको जन्नत की जमानत दूंगा।
दो चीजों की जमानत देना। जन्नत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उसको जमानत देता हूं वो बंदा जन्नत में जाएगा। एक फरमाया मा बैन लहयैहि, दो जबड़ों के दरमियान जो चमड़ा है, इस जबान की कोई बंदा अगर जमानत दे, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं जन्नत की जमानत दूंगा। दूसरा फरमाया मा बैन फहज़ैहि, दो रानों के दरमियान शर्मगाह की कोई बंदा जमानत दे दे कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, इसकी वजह से अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया मैं उस बंदे को जन्नत की जमानत देता हूं। और नबी अलैहिस्सलाम ने झूठ की मजम्मत बयान करके ये भी बयान फरमाया कि जब किसी मुसलमान की जबान से झूठ निकलता है, अल्लाह के फरिश्ते उससे 1 मील दूर भाग जाते हैं। 1 मील तक अल्लाह के फरिश्तों की मदद और नुसरत और जो हिफाजत होती है वो अल्लाह के फरिश्ते दूर भाग जाते हैं। और साथ फरिश्ते फरमाते हैं क्यों भागे, इसका जवाब भी नहीं, ये फरमाते हैं कि उसके मुंह उससे इतनी बदबू फैलती है जिसको फरिश्ते भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और फरिश्ते भी उससे भाग जाते हैं। लेकिन 3 मकाम ऐसे हैं जिन मकाम पर झूठ बोलने की इजाजत है, इसके अलावा किसी मकाम पे झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। समझ लीजिए कि 3 मकाम जहां पर खैरख्वाही मतलूब हो, उन 3 जगहों पर झूठ बोलने की इजाजत है। उनमें से सबसे पहला मकाम यह है कि खामन अपनी बीवी को राजी करने के लिए अगर झूठ बोले तो खामन का अपनी बीवी को राजी करने के लिए ये झूठ बोलना, ये इसकी इजाजत है। दूसरा फरमाया लड़ाई के दौरान यानी जंग के दौरान अगर कोई बंदा जंगी चाल के लिए अपने दुश्मन को ज़ेर करने के लिए, कमजोर करने के लिए कोई जुमले ऐसे बोल दे जो झूठ पर मबनी हो लेकिन वो जंगी चाल के लिए हो तो उस वक्त की इजाजत है। तीसरा, अगर 2 बंदे आपस में नाराज हों, उन 2 बंदों के दरमियान सुलह सफाई करवाने के लिए दोनों के दरमियान झूठ बोला जाए। ये एक से कहा जाए कि तुम्हारे बारे में वो बंदा बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है और उधर जाके उससे कहे आपके बारे में तो वो ऐसी ऐसी बातें करता है, हालांकि वो बातें एक दूसरे के बारे में ऐसी नहीं करते। तो इस झूठ के ऊपर सवाब भी मिलेगा और 2 मुसलमानों को आपस में मिलाने का भी उसको सवाब मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोजे को खराब कर देने वाली, रोजे को तोड़ देने वाली 2 चीजें हैं। एक, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया झूठ रोजे को तोड़ देता है, और दूसरा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोजे को तोड़ने वाली चीज जो है वो गीबत है। लेकिन समझिए इस बात को कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया कि कोई बंदा अपनी उम्र में इजाफा चाहता है कि उसकी उम्र दराज हो, बहुत लंबी उम्र हो पाए, तो उस बंदे को चाहिए कि वो अपने वालिदैन के साथ भलाइयां करे, अपने वालिदैन के साथ एहसान करे, अल्लाह उसकी उम्र को इजाफा करते जाएंगे। एक तो जिंदगी अगर बंदे वालिदैन जिंदा हैं तो सही है, अगर किसी के वालिदैन फौत हो चुके हैं तो उसको ये चाहिए कि वो अपने वालिदैन के जो दोस्त हैं उनके साथ या अपने वालिदैन के पीछे इसाले सवाब करता रहे, उनको अपनी दुआओं में याद करे, अल्लाह उस मुसलमान की उम्र में भी इजाफा फरमा देंगे। और दूसरा फरमाया जो बंदा अपनी रिज्क की तंगी को दूर करना चाहता है, रिज्क की तंगी को दूर करना चाहता है, उस मुसलमान को चाहिए कि वो झूठ से इज्तनाब करे, झूठ बोलना छोड़ दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि झूठ बोलने छोड़ देने की वजह से अल्लाह उस मुसलमान के रिज्क में इजाफा फरमाएंगे। लेकिन आज हमारे मुआशरे में मजाक के तौर पर भी झूठ बोला जाता है, गपशप के लिए झूठ बोला जाता है, दिल लगी के लिए झूठ बोला जाता है, किसी को हंसाने के लिए झूठ बोला जाता है। याद रखिए ये किसी को मजाक में हंसाने के लिए झूठ बोलना ये इसी तरीके से गुनाह है जिस तरीके से हकीकी झूठ बोलना गुनाह है। ये सोशल मीडिया के ऊपर आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि लोग इस तरीके से हंसाने के लिए झूठ की बातें करते हैं जिससे सारी दुनिया हंसती है। झूठ बोलना जिस तरीके से गुनाह है, झूठ को झूठ समझ के सुनना भी गुनाह है कि एक बंदे को पता है ये बंदा झूठी बातें करता है और फिर भी उस झूठी बातों के ऊपर वो सुनता है, ये सुनना भी उसके लिए गुनाह है। तो इसलिए झूठ से इज्तनाब किया जाए। एक और फेल हमारे अंदर ये पाया जाता है, हमें पाया जाता है कि अमूमन बच्चों से लाड करते वक्त उसको झूठ दिखाया जाता है, मुट्ठी बंद करके उसको बुलाया जाता है आओ तुम्हें कुछ चीज दें। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबिया बैठी हुई थी, तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, फरमाया इधर आओ मैं तुम्हें कुछ दूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो आपके पास कुछ देने को है? फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे पास गुड़ है, मैं अपने ये बेटे को गुड़ देना चाहती हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर आप बुलाकर कुछ न देती तो आपके जिम्मे झूठ लिख दिया जाता। और आप सोचिए आज छोटे छोटे बच्चों को प्यार करने के लिए
اپنے پاس بلایا جاتا ہے، لیکن اس میں جھوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور جھوٹ کے طور پر اپنے پاس بلا کر اور اس طریقے سے دیا کچھ بھی نہیں جاتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک عالم سے حدیث حاصل کرنے کے لیے لمبا طویل سفر کیا، اور لمبا طویل سفر کرنے کے بعد وہاں پر پہنچے تو دیکھا وہ بکریاں چرا رہے تھے، وہ عالم دین بکریاں چرا رہے تھے، اور انہوں نے اپنی دامن کو اس طریقے سے پھیلا کر بکری کو بلایا، جس طریقے سے عموماً پتے دکھا کر بکری کو بلایا جاتا ہے، تو اپنے دامن کو جولی بنا کر بکری کو جب بلایا تو بکری قریب آئی تو انہوں نے دامن چھوڑا تو بکری دامن پہ پتے وغیرہ کچھ نہیں تھے اور بکری کو پکڑ لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک اتنا لمبا سفر کیا ہوا واپس آ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے آپ نے اتنا لمبا سفر کیا اور اس سفر کرنے کے بعد آپ پھر واپس بھی آ گئے اور آپ نے ان سے حدیث حاصل بھی نہیں کی تو کیوں واپس آ گئے؟ فرمایا جو بندہ جانوروں کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں کیسے جھوٹ نہیں بول سکتا؟ میں نے احتیاطاً اس بندے سے حدیث حاصل کرنا ہی چھوڑ دی۔ جو بندہ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، انسانوں کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ اس لیے اگر کوئی بندہ اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے وہ روزے کا حقیقی مقصد بھی حاصل کرے گا۔ کہ روزے کا جو حقیقی مقصد ہے وہ یہ بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، روزے کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے روک دیا جائے، اور اس زبان سے متعلق 13 قسم کے گناہ ہیں۔ ایک چھوٹی سی زبان 13 قسم کے گناہ اس زبان سے متعلق ہے، ان میں سے ایک جھوٹ ہے اور دوسرا جھوٹی گواہی ہے۔ ہماری عدالتوں میں آج کچھ نہیں ہو رہا، جھوٹ کے لیے، جھوٹی گواہی کے لیے چند روپوں کے لیے جھوٹی گواہی دے دی جاتی ہے۔ عدالتوں میں انصاف بکتا جا رہا ہے، عدالتوں میں چند روپوں کے لیے جھوٹی گواہی دی جاتی ہے، اور جھوٹی گواہی دینا اتنا کبیرہ گناہ ہے کیوں؟ اس سے ایک تو بندے کا حق جلا جاتا ہے، ایک بندے کا حق ہے اور اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے کر اس بندے سے حق لے کر دوسرے کو دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے، اور دوسرا جھوٹ کا بھی گناہ اس میں لازم آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جب انصاف ہو، سچ ہو تو اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن سعید رضی اللہ تعالی حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت نے ان کے خلاف جھوٹی گواہی دلائی۔ حضرت سعد بن زید کے گھر تھا تو اس عورت نے جھوٹی گواہی یہ دلائی یہ گھر میرا ہے، تو قاضی وقت نے فیصلہ دیا کہ یہ گھر جو ہے اس عورت کو دے دیا جائے سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر۔ تو حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب گھر لیا گیا انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں بد دعا کی، اے اللہ اس عورت کو اندھا کر کے اس گھر میں مار۔ تو پھر وقت ایسا آیا کہ وہی عورت جس عورت نے جھوٹی گواہی دے کر گھر حاصل کیا تھا، اللہ نے اس کے گھر میں جو کنواں تھا اندھا کیا پہلے، پھر وہ جا رہی تھی تو گر کر اس کنویں میں گر کر وہ مر گئی۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی چاہیے۔ انگریز کے زمانے میں ہندوستان کی سرزمین پر ایک مرتبہ مندر اور مسجد کی جگہ پر جھگڑا ہوا۔ ہندو کہنے لگے یہ جگہ مسجد کی ہے، مندر کی ہے، اور مسلمان کہنے لگے نہیں یہ جگہ مندر کی ہے۔ اب انگریز کی عدالت تھی اور انگریز کی عدالت میں جب تک فیصلہ تب تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک کوئی گواہ پیش نہ کیا جائے۔ ہندو اپنی جگہ پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں یہ جگہ مندر کی ہے، مسلمان اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں یہ جگہ مسجد کی ہے۔ تو انگریز نے یہ حکم جاری کیا کہ جاؤ، ہندوؤں سے یہ کہا جاؤ کسی مسلمان کو لے کر آؤ جو مسلمان یہ گواہی دے یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، اور مسلمانوں سے یہ کہا کہ جا کے ہندوؤں میں کوئی بندہ تلاش کر کے لاؤ کہ جو ہندو یہ گواہی دے یہ جگہ مسجد کی ہے۔ مسلمانوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہندو آ کر یہ گواہی دے دے یہ جگہ مسجد کی ہے؟ ہندو کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو انگریز نے، جج نے ہندوؤں سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ جاؤ مسلمانوں سے کوئی ایک بندہ ڈھونڈ کے لاؤ جو آ کر یہ گواہی دے یہ جگہ مسجد کی ہے۔ تو ہندو سارے کے سارے عالم دین مولانا یحییٰ رحمہ اللہ تعالیٰ غالباً ان کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ آپ آ کر انگریز کی عدالت میں گواہی دے کہ ہماری جگہ جو ہے وہ مندر کی جگہ ہے۔ تو ان عالم دین نے جواب دیا مجھے انگریز سے اتنی نفرت ہے کہ میں نے زندگی میں قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں اللہ کی قسم کبھی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، اس لیے میں انگریز کی عدالت میں نہیں جاتا۔ ہندوؤں نے جج کو یہ بتایا، جج نے یہ حکم جاری کیا کہ ان عالم دین سے یہ کہہ دیجئے کہ میری عدالت میں آ کر
मेरी तरफ पीठ करके खड़े होकर गवाही दे दें ताकि मुझे फैसला करने में आसानी हो। जब उन्हें बताया गया वो अदालत में आए और अदालत में खड़े हुए जज ने पूछा, हाँ ये बताओ ये जगह मस्जिद की है या मंदिर की है? तो उन आलिम दीन ने जवाब दिया, जज साहब मुझे इस बात का नहीं पता ये जगह मंदिर की है या नहीं है, अलबत्ता इतनी बात जरूर है ये जगह मस्जिद की नहीं है। ये मुझे नहीं पता कि मंदिर की है या नहीं है, लेकिन ये मैं गवाही देता हूं ये जगह मस्जिद की नहीं है। सारे मुसलमानों ने शोर करना शुरू कर दिया कि मौलवी बिक गया, पैसे खा गया, फलाह हो गया। लेकिन जब अदालत ने फैसला दिया मस्जिद की जब नहीं है तो ये जगह मंदिर की है, लिहाजा हिंदुओं के हक में जब फैसला हुआ वो हिंदू बाहर निकले और बाहर निकल के आपस में मशवरा करने लगे, देखो यार एक मुसलमान है और उस मुसलमान ने कैसी सच्ची गवाही दी है, लिहाजा क्यों ना हम सारे के सारे इस्लाम कबूल करें। सब ने ये कहा कि ये उम्मती इतना सच्चा है वो नबी कितना सच्चा होगा जिस नबी की ये उम्मती है। सब ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। जहां मंदिर बनाया जा रहा था वहां पे बाद में मस्जिद बनी। तो एक झूठी गवाही को छोड़कर सच्ची गवाही देने से अल्लाह ने इस्लाम का बोलबाला भी किया। मंदिर की जगह पे अल्लाह ने मस्जिद भी बनाया। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तीन बंदों की तरफ अल्लाह ताला नजरे रहमत नहीं फरमाते, तीन बंदों की तरफ अल्लाह नजरे रहमत नहीं फरमाते। साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन से तीन बंदे हैं? फरमाया, एक वो बंदा जो बंदा नेकी करके नेकी का एहसान जतलाए। जैसे लोग नेकी कर लेते हैं फिर उसके बाद कहते हैं मैंने ये नेकी की, मैंने ये नेकी की। एक एहसान जतलाने वाले की तरफ अल्लाह रहमत की निगाह से नहीं देखते। दूसरा, उस मुसलमान की तरफ अल्लाह नहीं देखते जिसकी शलवार टखनों से नीचे रहती हो। हमेशा शलवार टखनों से नीचे रखने वाले की तरफ अल्लाह रहमत की निगाह से नहीं देखते। तीसरा फरमाया, उस बंदे की तरफ जो बंदा झूठी कसमें खा के माल को फरोख्त करता है। माल बेचने वाला क़यामत के दिन भी अल्लाह उनकी तरफ रहमत की निगाह से नहीं देखेगा जो बंदा अपने माल को बेचने के लिए झूठी कसमें उठाकर माल को फरोख्त करे। खुलासा दर्ज का ये निकलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा भूखा प्यासा रहे और साथ झूठ न छोड़े तो अल्लाह को कोई हाजत नहीं है कि वो भूखा प्यासा रहे। भूखा प्यासा रहने के साथ साथ जैसे खाने पीने से इंसान इज्तनाब करता है रोजे की हालत में, ऐसे ही उस बंदे के लिए जरूरी है कि वो बंदा झूठ से भी इज्तनाब करे। अल्लाह से दुआ